Hello students, this is the second lecture of the fire claim account. In the first lecture we have completed the basic theory of the fire claim accounts. What are the examples or three types of the policy we have covered, and the average close. This is average close we have understood in the part 1. Now in today's lecture we are going to start with our calculation or sum in the type 1 when the goods or stock is insured. To solve this illustration or solve this practical, we have to follow the 4 steps. In earlier lecture we have completed the 4th step, that is how to find out the average close, that basic step. In today's lecture we will start with the whole step and we will cover whole this method when the only stock or goods is insured. So we have taken only insurance for the stock, then we have to find out the specific step. That first step is find out the value of the stock. What do you mean by the find out the value? At the date of the fire, how much stock is in your godown or in your property, right? So what is that value of the stock? We have to find it out. For the finding out that stock, we have to prepare a trading account till the date of the fire. So we have to prepare for that. Fire account is trading account is as same as a trading account, but the difference is on the up to date of the fire. Generally we made a trading account at the end of the year, but to find out the closing stock on the date of the fire, we have to make a trading account for that purpose. It's same, it is a trading account that you have learned in your 11th or 12th, right? So this is the opening stock, then purchase minus purchase return, then purchase and manufacturing expense, octroi and wages, then this side sales return, any goods duplicated at sample, drawn for personal use, lost by the fire, or anything goods given to the charity, etc. And most two important is their gross profit and the closing stock. In the sum of the sum, gross profit is already given. So if gross profit is already given, so we can directly put the percentage on it and we can find the gross profit. But if the gross profit is not given, so we have to find out the gross profit, right? That we will learn in the step number 2. But if the gross profit is already given, you can put it on here gross profit and you can find out the closing stock at the date of the fire using the trading account. This is the step number 1. You have to find out the value of the stock, right? This is the step number 1. Then step number 2. When the gross profit, find out the rate of the gross profit. If rate of the gross profit is already given in your sum, that you can easily use it and directly put the gross profit on the trading account. But if rate of gross profit is not given, so we have to find out. So how can we find out? Let's get started. Generally, what is the formula of the rate of the gross profit? The rate of gross profit is equals to profit divided by sales into 100. But now we have to find out the profit, right? Gross profit. We don't have a profit or a gross profit. So how can we find the rate of the gross profit? For that, we have to use the last 3 years or 2 years data for that to find out the gross profit. For that 3 years data, on the basis of the last 3 years data, we can find the rate of the gross profit, and according to that, we can find the rate of the gross profit for our current year. तो लास्ट ईयर के डेटा के हिसाब से हम रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करेंगे. अगर 3 ईयर का डेटा दिया गया है और तीनों ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट हमें मिल गया है, राइट? सो उसमें 3 सिचुएशन होती है, जैसे कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, राइट? अब मान लो कि फर्स्ट ईयर में 25% है, यहाँ पे 20% है और यहाँ पे 30% है. तो यहाँ पे तो
तो ये रेशियो कैसा है, फ्लक्चुएटिंग है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। अगर 3 सालों का ग्रॉस प्रॉफिट रेट अगर फ्लक्चुएटिंग है तो आपको क्या लेना है, एवरेज लेना है। क्या लेना है, एवरेज। तो एवरेज आप कैसे लोगे, तो तीनों का टोटल डिवाइड बाय 3, राइट। सो अगर फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट है तो आपको एवरेज लेना है। अगर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर है, मान लो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर है, जैसे कि 15%, 10%, 7%, राइट। सो यहाँ पे क्या हो गया, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीजिंग है। अगर डिक्रीजिंग है तो लोएस्ट रेट लेना होगा, विच एवर इज लोएस्ट, तो लोएस्ट रेट कंसिडर करेंगे फॉर द रेट ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट, राइट। एंड इफ इंक्रीजिंग है यानी कि 20%, 25% एंड 30%, सो यहाँ पे क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, लास्ट ईयर का रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो हमें वेटेड एवरेज फाइंड करना है। क्या करना है, वेटेज एवरेज। तो वेटेज एवरेज कैसे निकालते हैं, हम वेटेड दे देंगे 1, 2 और 3, वेटेड दे देंगे और उसका मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। सो इसका टोटल आएगा 20, 50, 60, that is total is 130 and weightage total is 6. So weightage आएगा 21.67%. सो ये हम कंसिडर करेंगे एज अ ग्रॉस प्रॉफिट। तो अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया गया है तो आपको ये लास्ट 3 इयर्स का डेटा दिया गया होगा, उसके हिसाब से आपको ट्रेडिंग अकाउंट बना के ये रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा। समझ में आया? ये प्रॉफिट और सेल्स लास्ट 3 इयर्स के हिसाब से प्रॉफिट, सेल्स, ऐसे रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा लास्ट ईयर 3 इयर्स का, उसके हिसाब से हम ये सिलेक्ट करेंगे। और अगर फ्लक्चुएटिंग होगा तो एक एवरेज कंसिडर करेंगे फॉर द करंट ईयर रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। अगर डिक्रीजिंग होगा तो डिक्रीजिंग लोएस्ट वैल्यू कंसिडर करेंगे, और इंक्रीजिंग होगा तो वेटेड एवरेज निकालेंगे। समझ में आ गया? दिस इज द स्टेप नंबर 2. Step number 1 is find out the value of the closing stock, right? And this is the step number 2 to find out the rate of gross profit when it is not given. If it is already given, that it is okay, we can use directly. But if it is not given, we have to find out using the previous year's data, right? Now step number 3, find out the cost of goods burned. कितना माल जल गया है, उसमें से कितना बच गया है, कितना हम सेल कर सकते हैं, वो हम माइनस करेंगे और फाइंड करेंगे कि एक्चुअल में ऑन द डेट ऑफ द फायर हमें कितना लॉस हुआ है, राइट? सो दिस इज द स्टेप नंबर 3 टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द गुड्स बर्न. एंड लास्ट 4th स्टेप, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ द क्लेम यूजिंग द एवरेज क्लोज इफ इट इज अंडर इंश्योरेंस. सो जो हमने लास्ट स्टेप कल सीखा था एवरेज क्लोज के अंडर कि अमाउंट ऑफ क्लेम कैसे फाइंड करना है, वो लास्ट स्टेप हम करेंगे और अमाउंट ऑफ क्लेम फाइंड करेंगे. समझ में आ गया? 4 स्टेप में है. अगर आपकी पॉलिसी सिर्फ स्टॉक के हिसाब से है तो 4 स्टेप में होगा. टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक, देन फाइंड आउट द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इफ इट इज नॉट गिवन, देन स्टेप नंबर 3 फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ गुड्स बर्न, यानी कि कितना नुकसान हुआ है, गुड्स कितना जल गया है, एंड दिस लास्ट स्टेप फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ द क्लेम यूजिंग इफ एवरेज क्लोज इज देयर, राइट? तो इस मेथड का हम एक इलस्ट्रेशन ले लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए. ये है टाइप 1 व्हेन द ओनली गुड्स आर टेकन इंश्योर्ड, राइट? So illustration number 4, fire broke out in the building of the MS Desai Brothers on 17 June 2011 and the most of stock was destroyed. The value of the stock salvage is 11,200. In the addition, some of the goods salvage was damaged condition and its value is determined at 10,400. Following condition is there.
द क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31st December 2010 was 83,500. At the end of the 2010, closing stock was 83,500. Purchase during 1/1/2012 to 17/6/2011 was 1,12,000. Sales during the period is 1,54,000. It is ascertained from the account of the last 3 years an average rate of gross profit is on sales was 25%. पहले तो आपको ये देखना है कि ग्रॉस प्रॉफिट किस पे दिया गया है. प्रॉफिट ऑन सेल्स है तो हम डायरेक्टली ले सकते हैं. अगर प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है तो हमें वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी ग्रॉस प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट, राइट. ये भी आपको पॉइंट याद रखना है कि ग्रॉस प्रॉफिट किस पे दिया गया है. ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स पे दिया गया है या ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट पे दिया गया. अगर ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट पे दिया गया होता तो हम ये यूज़ करते कि 20% ऑन कॉस्ट होता तो सेल्स पे कितना होगा, तो 16 2/3%. 25% ऑन कॉस्ट है तो हम अज्यूम करेंगे 20% ऑन सेल. तो ये इन्फॉर्मेशन यूज़ करके आप कर सकते हो. बट यहाँ पे तो प्रॉफिट ऑन सेल्स ही दिया गया है, so no need to take care of it. Then stock was insured for 75,000. So insurance policy for the stock is 75,000. Calculate the amount of claim, right? So step by step हम करेंगे. Step number 1 क्या होगा, to find out the value of the closing stock. So क्लोजिंग स्टॉक दो तरीके से होता है. एक ट्रेडिंग अकाउंट से भी फाइंड कर सकते हैं और ये स्टेटमेंट से भी फाइंड कर सकते हैं. बट आपके लिए सबसे इजी मेथड है कि आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ और कैलकुलेशन कर लो. तो हम उसी हिसाब से सम करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशंस. कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले लिखना है डेट ऑफ फायर. क्या लिखना है, डेट ऑफ फायर. किस डेट को आग लगी थी, वो है 17 जून 2011. सो हमारा ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है और जून तक का है. तो हम स्टार्ट करेंगे 1/4/2011 टू 17 जून 2011. सो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट जो बनेगा वो कितने पीरियड का बनेगा, सो 1/4/2011 टू 17/6/2011 तक का ही बनेगा. जनरली फाइनेंशियल ईयर 1/4 से स्टार्ट होता है, बट यहाँ पे हमें परचेज ड्यूरिंग 1/1 दिया गया है तो ये फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से नहीं है क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक दिसंबर से है. तो यहाँ पे ईयर स्टार्ट होएगा जनवरी टू दिसंबर. सो यहाँ पे डेट आ जाएगी 1/1/2011, राइट. जिस हिसाब से सब में दिया गया है उस हिसाब से आप डेट लिखोगे. सो यहाँ पे आ जाएगा 1/1/2011 टू 17/6/2011. तब तक का हमें क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना है तो उसके लिए हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट टिल द डेट ऑफ द फायर, राइट. सो लेट्स मेक अ स्टेटमेंट. तो ट्रेडिंग अकाउंट हमने बना लिया. सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक क्या दिया गया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द 31st December. तो हमारे लिए ओपनिंग स्टॉक हुआ वो हो जाएगा 83,500. देन परचेज इज गिवन, परचेज इज 1,12,000. देन परचेज एक्सपेंसेस इज गिवन, नो इट्स नॉट गिवन. एनी अदर एक्सपेंसेस इज गिवन, नो नथिंग इज गिवन. सो लेट्स get to this side. Sales is given 1,54,000. If the sales return or purchase return will be there, we have to deduct from respective sales and purchase. Then यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट. यहाँ पे हम ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं और यहाँ पे हम क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करेंगे, राइट. यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी दिया गया है. अगर हमें यहाँ पे रेट ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया गया होता तो पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करते, रेट ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करते, उस रेट के हिसाब से हम यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करते, राइट. बट यहाँ पे तो दिया गया है दैट इज 25% ऑन अ सेल्स. तो यहाँ पे सेल्स है 1,54,000.
सो 1,54,000 के 25% कितने आए 38,500. तो ग्रॉस प्रॉफिट आया 38,500. सो हमें क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा. यस, आसानी से मिल जाएगा. सो हम यहाँ पे टोटल करेंगे. टोटल आएगा 2,34,000 माइनस 1,54,000. सो क्लोजिंग स्टॉक विल कम 80,000. that we have to find out. So closing stock कितने का आया 80,000 का. So step number 1 was to find out the value of the stock, that is 80,000. Then step number 2, rate of the gross profit. But rate of the gross profit is already given, so no need to calculate that. Directly we have to find out the value of goods destroy or burn. सो डिस्ट्रॉय कितने का हुआ होगा 80,000 का स्टॉक गोडाउन में था, तो ऑब्वियसली उतना डिस्ट्रॉय हुआ होगा. तो यहाँ पे आएगा 80,000. अब उसमें से माइनस करेंगे अगर कुछ सामान बच गया होगा तो. सो उसमें से सामान बच गया है. द वैल्यू ऑफ द स्टॉक सेल्वेज इज 11,200 एंड व्हेन सम ऑफ द गुड्स आर वैल्यूड एट 10,400. सो वो भी हम माइनस करेंगे. सो 80,000 माइनस 11,200 माइनस 10,400, इट विल कम 58,400. सो वैल्यू ऑफ द गुड डिस्ट्रॉय इज 58,400. राइट. सो दिस इज द स्टेप नंबर 3. नाउ स्टेप नंबर 4, amount of claim. स्टॉक कितने का था 80,000 का. इंश्योरेंस पॉलिसी कितने की ली है, तो लास्ट पॉइंट में दिया गया है 75,000 की. तो 80,000 का स्टॉक है, पॉलिसी है 75,000 की. राइट. तो यहाँ पे अंडर इंश्योरेंस हुआ. यस हुआ. और हमें डिस्ट्रॉय कितना हुआ है 58,400. राइट. तो एवरेज क्लोज लगेगा. यस डेफिनेटली लगेगा. तो यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं अमाउंट ऑफ क्लेम. जब 80,000 का स्टॉक था, इंश्योरेंस पॉलिसी 75,000 थी, तो अब स्टॉक 58,400 है, तो इंश्योरेंस पॉलिसी की क्लेम की अमाउंट क्या होगी. सो 58,400 मल्टीप्लाई विथ 75,000 डिवाइड बाय 80,000, इट विल कम 54,750 rupees. सो दिस इज द अमाउंट ऑफ क्लेम. ये आपको समझ में नहीं आया तो आप ये फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं. दैट इज अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल्स टू सम इंश्योर्ड डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ द स्टॉक इनटू लॉस. लॉस हुआ है 58,400 का. इंश्योरेंस पॉलिसी ली है 75,000 की और वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक वुड बी 80,000. ये यूज़ करके लिखोगे तो भी आंसर सेम आएगा और ये यूज़ करोगे तो भी आंसर सेम आएगा. ठीक है. तो ये यूज़ करके आप अमाउंट ऑफ क्लेम फाइंड कर सकते हो. दिस इज द फर्स्ट मेथड व्हेन योर ओनली गुड्स आर इंश्योर्ड. राइट. ये हमने इलस्ट्रेशन 4 किया, उसमें ऑलरेडी रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया था. अब हम ऐसे केसेस देखेंगे जिसमें रेट ऑफ प्रॉफिट हमें फाइंड करना होगा. सो इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड आउट द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ द ईयर एंडिंग 31 December 2012. राइट. सो उसके हिसाब से ये 4 केसेस दिए गए हैं, उसके हिसाब से हमें रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है. तो ये पास्ट ईयर का डेटा है, करंट ईयर का डेटा नहीं है. पास्ट ईयर के डेटा के हिसाब से हमें रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है. तो यहाँ पे लिखा है परचेज 5 लाख, ओपनिंग स्टॉक 3,30,000, वेजेस 50,000, सेल्स 8 लाख एंड क्लोजिंग स्टॉक 4 लाख. सो हम ग्रॉस प्रॉफिट, पहला तो ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा और ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड के हिसाब से रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा. राइट. सो ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे. क्या बनाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट. सो ये हमने ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया. ओपनिंग स्टॉक लिख लिया, परचेज लिख लिया, वेजेस किस में आता है? परचेज एक्सपेंस में आता है, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में ही आएगा. सेल्स दिया गया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है. राइट. सो उसके हिसाब से ग्रॉस प्रॉफिट 3,20,000 आसानी से मिल जाएगा क्योंकि
क्रेडिट साइड का टोटल माइनस डेबिट साइड जितनी भी आइटम है उसका माइनस करेंगे तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा 3,20,000, राइट। ग्रॉस प्रॉफिट 3,20,000 मिल गया, बट हमें फाइंड करना है रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। So gross profit is 3,20,000 divided by 8 lakh into 100. So rate of the gross profit would be 40%. This is the first case. अगर ऐसा दिया गया है आपको पास्ट ईयर का डेटा, तो पास्ट ईयर के डेटा के हिसाब से आप ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड कर सकते हो इजीली। देन सेकेंड सिचुएशन, purchase, opening stock, wages, sales, closing stock. Then during the year, goods costing 1 lakh rupees was destroyed in transit and insurance company accepted the claim of rupees 60,000. So यहाँ पे हम फायर इंश्योरेंस का ही कैलकुलेट कर रहे हैं। ट्रांजिट में कोई गुड्स लॉस हुआ है तो उसका हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ जो भी डिस्ट्रॉय हुआ है गुड्स वो क्रेडिट साइड लिखेंगे ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। तो भी जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है, परचेज दिया गया है, ओपनिंग स्टॉक, वेजेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक एंड गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं, तो आपको पता ही है कि आप ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो टोटल वैल्यू ऑफ द गुड डिस्ट्रॉयड वी राइट इन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, देन वी विल फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट एंड ऑन द using the same formula, that is gross profit divided by sales into 100, we have to find out the rate of gross profit. समझ में आया? देन थर्ड केस क्या है? परचेज दिया गया है, ओपनिंग स्टॉक, वेजेस दिया गया है, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक। द कंपनी यूज टू वैल्यू द stock at a 10% less than the cost, but is decided for this year to value the stock as 10% more than its cost price. यहाँ पे एक एडजस्टमेंट दिया गया है। जब हम ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे तो हमें ध्यान रखना होगा कि जो भी ओपनिंग स्टॉक है और क्लोजिंग स्टॉक है उसको ये एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। दैट इज कंपनी यूज टू वैल्यू द स्टॉक एट अ 10% लेस देन द कॉस्ट। सो ये ओपनिंग स्टॉक हुआ हो 10% लेस होगा, राइट? वो 10% लेस है यानी कि वो 90% है। सो 90% है 3,60,000 है, तो 100% पे कितना आएगा? तो आएगा 4 लाख। 10% लेस वैल्यू पे ऑलरेडी किया गया है, हमें 100 वैल्यू पे ही लेना है। तो यहाँ पे 3,60,000 है, वो 90% है, तो 100% पे फाइन करना पड़ेगा और ओपनिंग स्टॉक हम लेंगे 4 लाख रुपीज़। और क्लोजिंग स्टॉक में क्या आएगा? 4,40,000 विच इज़ अ 10% मोर देन अ कॉस्ट प्राइस। सो ये मोर है तो यानी कि 110% है। सो 110 पे 4,40,000 तो 100 पे कितना? तो ऐसे हम क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करेंगे और वैल्यू आएगी 4 लाख। ये दो ही एडजस्टमेंट है, बाकी एज इट इज़ है। ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है और सेम फॉर्मूला यूज़ करके रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है, राइट? Then last, purchase, opening stock is given, wages is given, sales is given, closing stock is given. During the year, stock value of rupees 15,000 unsellable, and so the 5,000 was write off. On this, half of the goods were sold at a loss of rupees 500. तो यहाँ पे जो 500 का लॉस हुआ है वही हम लिखेंगे जनरल लॉस करके 500 है, और बाकी एज इट इज़ करके क्लोज करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। और उसके हिसाब से रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे एबनॉर्मल नॉर्मल दिया गया है, बट आपको ऐसा नहीं करना है। सिर्फ डायरेक्टली ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस, देन सेल्स, ग्रॉस लॉस 500 लिखो और क्लोजिंग स्टॉक लिखो, आपको आंसर मिल जाएगा। दैट इज़ 5,35,000। और रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट यूज़ करके आप रेट फाइंड कर सकते हो। दिस फॉर्मूला यूज़ करके रेट फाइंड कर सकते हो। तो जब आपको रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया गया है तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हो और इसके जितने भी एडजस्टमेंट हैं वो आपको अप्लाई करके रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है, राइट? आपको प्रैक्टिस में करना है प्रैक्टिकल नंबर 3। यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। एक पॉइंट आपको खास बता दूं कि यहाँ पे प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया गया है, दैट इज़ प्रॉफिट ऑन अ कॉस्ट 25%। तो आपको प्रॉफिट ऑन सेल्स कंसिडर करना है
तो ये डेटा यूज़ करके आप कर सकते हो, दैट इज़ 25% ऑन कॉस्ट, दैट मीन्स 20% ऑन सेल्स, राइट। ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है और उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे। यहाँ पे रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी दिया गया है, दैट इज़ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज़ 25%, दैट मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स विल बी 20%, राइट। ये इन्फॉर्मेशन यूज़ करके आपको ये सॉल्व करना है प्रैक्टिकल नंबर 3 इन योर प्रैक्टिस। ओके, थैंक यू।